Hello, this is Dr. Sujata Datta Hazarika, Senior Regional Director, IGNOU Regional Center, Kolkata. My dear learners, on behalf of IGNOU Regional Center, Kolkata, it is my proud privilege to welcome you all to this special lecture, Helping Our Minds, Shantir Utshomon, as we celebrate the World Mental Health Day. The lecture will be delivered by revered spiritual thinker, Raj Yoga teacher from the Brahmakumari World Spiritual University, Brahmakumari Sister Asmita. Asmita ji is a motivational speaker and a singer, and she has participated in a number of national and international conferences on positive health, women's issues, culture of peace. She specialized in conducting practical Raj Yoga meditation, which benefited a number of people for peace of mind, increasing concentration and focus for lasting happiness in life. Her song lyrics ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है has motivated millions to lead a peaceful life. Dear friends, a happy mind creates a stable person. A stable person makes a stable family. A stable family makes a stable community. A stable community makes a stable nation. And only stable nations can create a happy and resilient planet where people believe in cooperation, camaraderie, and peace as they together, as humanity grapples with common challenges of environmental degradation, increasing inequality in the world, and the disruptive power of technology. Our ancient sages and India's spiritual wisdom realized the importance of these ideas. Today, as we all gather to reflect on the insights on how to create stable new mental health, we realize Bhagavad Gita is not just a religious text. It embodies the emblem of the path to a happy life, the root of which lies in self management practices such as regulating one's desires, focusing of mind, and regulating self control. One of the most fundamental questions that has bothered human mind since origin of society is to understand happiness. In our journey towards understanding mental health, this becomes our primary quest. We all want to be happy. Whenever we face a hurdle in this quest, our mental health staggers. Our ancient sages, through their spiritual journey, have again and again tried to reveal the true connotations of happiness, the three modes of mental power that are invested in us and which we can control to reach eternal happiness, and happiness that is resilient and happiness that is everlasting. The first power is the power to control our mind. Mind, which has often been compared with the monkey, an animal which symbolizes asthirta, chanchalta, restlessness, and ever changingness of society or the world as a whole, or even as an individual. Nothing in the world is static, everything keeps changing, and with that change comes the need to adjust. The second power is the capacity to claim that power actually lies within ourselves. This realization is enormous. That not only are we responsible for our state of mind, we have the power to control our situations by controlling our thoughts. And it is not the other way. Do not wait for external situations to improve or change so that your own thoughts about your situation can become happy or sad. We have the power only on our own actions and not on others or the outside world. The third is the recognition that the power of selflessness and the power of selfless service. Whenever you feel powerless to control your desires and aspirations and turn unhappy from within, try to divert that energy as selfless service for a higher cause. Even a simple case of caring for a pet more than your own needs is a higher purpose which will bring you everlasting happiness, a much more deeper state of happiness than an immediate gratification can do. And the fourth is the power to act without achievement, to emphasize on actions without
bothering about the result, renunciating the result, where every action becomes an end in itself. That is the power which we have within us. Thank you very much for being here with us. You may write your comments and questions, which will be addressed by Sister Asmita in a subsequent podcast. I heartily welcome Sister Asmita and thank her for accepting our invitation today. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। Om Shanti. Om Shanti is a greeting of peace. शांति किसको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आज की दुनिया में जब हम शांति की बातें करते हैं तो कई बार लोगों को अनरियल लगने लगा है, जो कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स की ओरिजिनल नेचर शांति है, क्योंकि हम सभी को शांति पसंद है। और देखिए, आज हम मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जब भी कोई दिन खास ऑब्जर्व किया जाता है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि इस बात पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज क्या हो गया है जो मेंटल हेल्थ के ऊपर हमें ध्यान देने की इतनी आवश्यकता पड़ गई है, जबकि आज से 10-15 साल पहले की जो सिचुएशन थी और आज की जो सिचुएशन है उसमें हमें बहुत अंतर दिखाई देता है। इन 10-15 वर्षों के अंदर फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी एक अलार्मिंग तरीके से लोगों की खराब हुई है। हम कितने डिस्कशंस में सुनते हैं कि यंग पर्सन को हार्ट अटैक हो गया, वो भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देता था, अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देता था, उसको ऐसा हो गया। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कैसे हुआ, तो लास्ट में आंसर एक ही निकलता है कि शायद उसके लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा थे। तो ये एक वेकअप कॉल है हमारे लिए, जो फिजिकल हेल्थ भी इतनी फास्ट जो डिटेरियोरेट कर रही है, उसका एक कारण है कि मनुष्य अपने स्ट्रेस को संभाल नहीं पाता, मैनेज नहीं कर पाता है। तो दूसरी तरफ हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं, इतने एस्केलेट हो गए हैं, इतने ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ गए हैं कि 1 out of 5 या 1 out of 4 persons is experiencing some or the other form of mental disorder। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि 1 out of 5 या 1 out of 4 भी कह लीजिए, अगर लोग कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी फैमिली में कोई ना कोई है जिसको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है। और फैमिली में एक व्यक्ति को भी अगर मेंटल डिसऑर्डर होती है तो सारी फैमिली पर उसका असर होता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम्स तो फिर भी देखने में आती है। फिजिकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो तो फिर भी हम डॉक्टर के पास जाकर बताकर उसको ट्रीट करा सकते हैं, और ऑफ कोर्स मेंटल प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट कराया जाता है, परंतु सबसे पहली बात वो आइडेंटिफाई ही जल्दी से नहीं होती है कि मेंटल डिसऑर्डर है। बहुत बार लोगों को लगता है ये व्यक्ति तो बदमाशी कर रहा है, ये व्यक्ति तो जानबूझ के कर रहा है ऐसा, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो दूसरे लोग समझ ही नहीं पाते हैं।
तो जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किसी प्रॉब्लम को या डायग्नोस भी जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो जब तक वो बढ़ नहीं जाती है तब तक उसका कोई निदान नहीं हो पाता है। और बहुत बार लोग जिनको मेंटल डिसऑर्डर कोई होती है, वो खुद भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। तो इसीलिए आज के समय में ये अवेयरनेस लाना कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या है और कैसे हम इनसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसको ट्रीट तो करेंगे ही, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम ध्यान दें अपने मन को, हम कैसे शक्तिशाली बनाएं, कैसे मन को स्थिर रखें। तो मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है हमारे इमोशनल हेल्थ। इमोशनल बैलेंस हमारा कितना रहता है, क्योंकि इमोशनल बैलेंस जिसका ठीक नहीं है, बार बार मन ऊपर नीचे हो जाता है, छोटी छोटी बातों में कोई नाराज़ हो जाता है, ज़रा ज़रा सी बातों में दुखी हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, छोटी मोटी, कभी किसी ने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया तो, कभी कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ तो ये सभी बातों में अगर हमारा मन बार बार ऊपर नीचे, इमोशनली हम टर्ब्यूलेंट हैं, हम इमोशनली बार बार हिल जाते हैं, तो उसका तो सीधा प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है या फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। और अगर इमोशनल हेल्थ पर हम ध्यान दें अच्छी तरह से, इमोशनली हम स्टेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमें शरीर की बीमारियां भी कम होंगी या नहीं होंगी, या मेंटली भी हम फिट रहेंगे, फिजिकली भी फिट रहेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा लाइफस्टाइल के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इमोशनल हेल्थ का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारा फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है। इमोशनल हेल्थ मना अगर बार बार हम ऊपर नीचे होते हैं मन से, तो उसका प्रभाव हमारे रिलेशंस पर भी पड़ता है। कभी अगर हम उदास हों, अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो उदासी या वो जो अंदर की जो तकलीफ है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर निकालते हैं? तो देखा जाता है कि वो हम निकालते हैं अपने नियर एंड डियर वन, जो सबसे नज़दीक होते हैं, उनके ऊपर हम गुस्सा निकाल देते हैं, उनके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, या जो हमारे सहयोगी साथी होते हैं जहाँ हम काम कर रहे हो, तो क्लोजेस्ट जो होगा उसके ऊपर ही हम अपनी सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है उसको वेंट आउट करते हैं। जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, किसी तरह से बस, तो सबसे जो नज़दीक है उसके ऊपर उसका असर हो, इसी का सीधा प्रभाव हमारे बिहेवियर और हमारे सोशल हेल्थ, जिसको कहें हमारे रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। और हमारे इमोशंस अगर ऊपर नीचे होते रहते हैं तो हमारा काम भी ठीक से नहीं हो सकता है, क्योंकि मन हमारा ठीक नहीं हो तो काम में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, मन की क्लैरिटी नहीं रहती है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो ठीक नहीं रहता है, पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ के सब भूल जाएंगे। तो ये हमारे जो ऊपर नीचे मन की भावनाएं होती हैं, इनको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम कहेंगे कि अपने मन को स्टेबल रखना सीखें, अर्थात अपने इमोशंस को हम बैलेंस में रखना सीखें। जबकि आज का समय ही है, कभी खुशी कभी गम, जरा सी बात में ऊपर नीचे हो जाना, जैसे रोलर कोस्टर होता है, वैसे हमारी इमोशंस ऊपर नीचे ना होने दें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मेंटल हेल्थ है क्या, कैसे पता चले कि हम मेंटली स्ट्रांग हैं, हेल्दी हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने वाली है, या कहाँ पर हमें ध्यान देना है, रेड फ्लैग्स कहाँ हैं हमारे मेंटल हेल्थ के अंदर। तो सबसे पहला, जैसे हमारी बॉडी जब फिट होती है या स्ट्रांग होती है, हेल्दी होती है, हमें कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि
हमारी एनर्जी लेवल अच्छी रहती है, स्टेमिना रहता है, जल्दी से हम थक नहीं जाते हैं। तो बॉडी की थकान होती है जिसमें हम एनर्जी को बहुत खर्च कर रहे हैं, फिजिकल एनर्जी, हम शरीर से बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बॉडी हमारी थक जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बॉडी की थकान से भी ज़्यादा हमारे मन की थकान होती है। मन भी जल्दी थक जाता है अगर कमज़ोर हो, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसको आजकल कहते हैं ना ओवर थिंकिंग। ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई। थोड़ी सी बात होगी उसके बारे में इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे, सोच सोच के नींद भी उड़ जाएगी, सोच सोच के उसने ऐसा बोल दिया, क्यों बोला, किसी की बोली हुई बात जो पसंद नहीं आई वो दिल में ही बैठ गई। फिर अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, पर जैसे वो निकाल ही नहीं पा रहे दिमाग के अंदर से कोई बात। मालूम है कि अभी चिंता करके कुछ फायदा नहीं है, जो बीत गया सो बीत गया, या जो होगा वो उसके लिए हम तैयारी करें, लेकिन वरी करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। पर फिर भी जैसे कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे। और जैसे हम अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा काम करें, दौड़ लगाएं खूब, तो फिर उसके बाद हमारे पास और कुछ करने के लिए स्ट्रेंथ फिजिकली नहीं बचती है। इसी तरह से हमारा मन जो है वो ओवर थिंकिंग में जब लग जाता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत फास्ट सोचता है, तो मन भी थक जाता है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी हम जब बहुत काम करते हैं तब तो थकते हैं, तो नॉर्मल है। परंतु कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल फ्री थे, खाली बैठे थे और बोर भी हो रहे थे और फिर भी थक गए। अरे कुछ किया ही नहीं, फिर थके क्यों? क्योंकि शरीर से तो कुछ नहीं कर रहे थे, मन से भी खाली थे, और खाली मन शैतान का घर। इतना सोचा, यहाँ का वहाँ का, उसने ये किया, अननेसेसरी सोचा, जो सोचने की कोई दरकार नहीं है। ऐसे जब सोचते गए तो सोच सोच के ही मन थक गया। और कभी ऐसा होता है कि हम कितना भी काम कर लेते हैं तो भी थकते नहीं हैं। सारा दिन बहुत कुछ किया फिर भी नहीं थके, कारण हमारा मन जो था किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगा हुआ था, कुछ पॉजिटिव सोच रहा था, अच्छा फील कर रहा था। तो जब अच्छा हम फील करते हैं तो उसका एक इमीडिएट जो हम प्रभाव देखते हैं कि हमारे बॉडी की एनर्जी भी बढ़ जाती है, थकान भी नहीं होती है। और मन से जब हम थके होते तो छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ करते हैं, जरा जरा सी बात में बुरा मान जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ या मेंटल फिटनेस को अगर देखना हो तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा मन स्ट्रांग है और इमोशनली हम स्टेबल हैं क्या। हम एनर्जी को बहुत ज़्यादा खर्च करके थक तो नहीं जाते हैं मन से। तो जैसे हमारा शरीर है, बॉडी है, अगर बहुत कमज़ोर होगा तो ट्रेम्बल करेगा, हिलेगा। तो इसी तरह से जो कमज़ोर मन होता है बहुत हिलता है, स्टेबल नहीं हो पाता है। तो कंसंट्रेशन कैसे होगा, किसी बात में फोकस कैसे आएगा। घड़ी घड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो एकाग्रचित नहीं हो पाते। ये सभी मन के हेल्थ के लिए हम जानने के ये तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैमिना मन का कैसा है, मन की एनर्जी की लेवल क्या है, मन की इम्यूनिटी कितनी है। इम्यूनिटी माना जैसे फिजिकल इम्यूनिटी होती है ना, कि चाहे चारों तरफ हमारे वायरस है लेकिन उसका प्रभाव हम पर कितनी जल्दी पड़ता है। कोई होते हैं ज़रा सी बात पर बहुत जल्दी सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बीमार हो गए, बुखार हो गया, इम्यूनिटी लेवल खराब है। ऐसे ये मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ जाना, इन्फ्लुएंस हो जाना अच्छे बुरे का, सिचुएशंस का, या किसी व्यक्ति के बोलने का। तो ये सभी बातें हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मन कितना स्ट्रांग है या नहीं है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इमोशनल हेल्थ का भी स्टार्टिंग हुआ हम फील कैसे कर रहे हैं। अभी फीलिंग कहाँ से आती है हमारे मन में,
मैं अच्छा फील कर रही हूँ। किसी से हम मिलते हैं, हम कहते हैं हाउ आर यू, क्या जवाब मिलता है? या हम क्या जवाब देते हैं जब हमें कोई पूछता है हाउ आर यू? बस बोल देंगे गुड या आई एम फाइन। पर अगर हम सच में अपने अंदर पूछें कि क्या हर समय हम फाइन होते हैं, इज इट अ रियल आंसर? तो कभी हम टायर्ड फील कर रहे होते हैं, कभी हम एंग्री फील कर रहे होते हैं, इरिटेटेड फील कर रहे होते हैं, कभी लेजी फील कर रहे होते हैं। कितने वैरायटी ऑफ इमोशंस है जो हम फील कर रहे होते हैं। लेकिन यूं ही कोई पूछ लेता है हाउ आर यू, और हम यूं ही जवाब देते बिना सोचे हाउ एम आई। कभी अपने आप से हम पूछते हैं कि मैं कैसी हूँ, कैसा मुझे लग रहा है, वहां पर हम ध्यान देते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। आज हमारे पास फोन है, मोबाइल्स हैं, जिससे हम सारी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट है, सारी दुनिया से एक सेकंड में हम कनेक्ट कर सकते हैं। दुनिया भर की कहीं की भी जानकारी हमें सेकंड में मिल जाती है। किसी से हम बात करना चाहें, फटाफट हम बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और वहीं हमें खुद से बात करने का टाइम नहीं है। टाइम क्या, ख्याल ही नहीं है। तो कनेक्टेड विद एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड अस, कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, बट डिस्कनेक्टेड विद सेल्फ। जैसे हम कहते हैं कि फैमिलीज में एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है, एक दूसरे को के साथ शेयरिंग करने का लोगों के पास टाइम नहीं है। दूसरे की तो बात छोड़िए, अपने आप को भी देखने का, अपने अंदर भी झांकने का, अपने लिए भी केयर करने का टाइम नहीं है। वी आर सो बिजी। तो ये जो इमोशनल हेल्थ है या इमोशनल हमारी जो हमारी कंडीशन है, वो डिपेंड करती है हमारी फीलिंग्स पर, क्या फील कर रहे हैं। और हमारी फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? वो आती है हमारे थॉट्स से। हम क्या सोच रहे हैं उस अनुसार हमारी फीलिंग्स होती है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम कहेंगे और प्राइमरी जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है हमारा एवरी सिंगल थॉट। हमारे मन में तो कितने थॉट्स उठते हैं। सारे दिन में देखा जाए तो समथिंग लाइक 70 to 80,000 थॉट्स एवरेज एक मनुष्य के मन में आते हैं। और जितने ज़्यादा हमारे अंदर टेंशन होगा, जितना ज़्यादा हमारे अंदर लो फीलिंग्स होंगी, उतनी थॉट्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं थॉट्स जो है वो बीज की तरह है। तो बीज हमारा अच्छा होगा तो उससे जो पौधा निकलेगा, जो प्लांट निकलेगा, जो ट्री बनेगा, उससे जो फ्रूट्स आएंगे वो सब अच्छे होंगे। सीड में ही प्रॉब्लम है, थॉट्स ही ठीक नहीं। तो हमारी हेल्थ कह लीजिए, हमारे रिलेशंस कह लीजिए, हमारा एनवायरनमेंट कह लीजिए, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, जो हम काम कर रहे हैं, इस सब के ऊपर तो बहुत खराब उसका असर होने वाला है। तो आप सोच के देखिए, बहुत से लोगों को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। उनको बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने थॉट्स पर, मेंटल हेल्थ के लिए, तो कहेंगे टाइम नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है। जो हमारी लाइफ की हर एक्टिविटी, हर बात का एक फाउंडेशन है, आधार है, और उसको ध्यान देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये तो एक नया प्रकार का एपिडेमिक आया हुआ है संसार के अंदर, या एक नया प्रकार का फेमिन आया हुआ है, एक अकाल पड़ा हुआ है, दैट इज टाइम। जिसको पूछो हमारे पास टाइम नहीं है। बाकी सब फालतू बातें करने का टाइम है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके लिए टाइम नहीं। और टाइम नहीं है माना क्या? लोग कहेंगे हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी। क्या करने में बिजी हैं? ऐसे नहीं, बहुत काम करते हैं इसलिए बिजी है। लेकिन ये
सोचने में ही बिजी है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ। तो ऐसे सोच सोच के अपनी एनर्जी को खर्च कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपके मन में या मुख में आए कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो थोड़ा सा पॉज करके देखना हम किस बात के लिए कह रहे हैं, आई एम टू बिजी। कहीं ऐसा तो नहीं लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए हम कह रहे हैं कि आई एम टू बिजी। अपने लिए, खुद के लिए हम बहुत बिजी हैं, या अपने फैमिली के नियर एंड डियर वंस के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, उनके लिए हम कह रहे हैं कि हम बहुत बिजी हैं। थोड़ा सा ये सोचने की बात है। सो फर्स्ट थिंग कि हम सारे दिन में थोड़ा सा टाइम निकालें अपने ऊपर ध्यान देने का। वो टाइम ऐसा जरूरी नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे अपने ऊपर ही ध्यान देते रहना है। हम बिट्स एंड पीसेस में निकाल सकते हैं, छोटे छोटे पॉजेस दे सकते हैं सारे दिन में कई बार। और बहुत अच्छा है अगर हम फ्रीक्वेंटली एक हैबिट बना लेते हैं कि थोड़ा सा स्टॉप करके अपने आप को देखना है, क्या सोच रही हूँ मैं, अपने आप से पूछना मैं कैसा फील कर रही हूँ। अगर मेरे अंदर अच्छी फीलिंग्स है, इसका मतलब मेरे थॉट्स राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये आंसर आता है जैसे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग इरिटेटेड, आई एम फीलिंग अनहैप्पी, ऐसा कोई भी एक नेगेटिव फीलिंग का आंसर अगर आता है तो तुरंत अलर्ट होकर देखें कौन से थॉट्स मैंने क्रिएट किए जो मेरे अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं। आप कहेंगे कि अरे वाह, हम ही थोड़ी कुछ हम सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोग बातें ऐसी करती हैं, सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं कि मन में खराब फीलिंग्स तो आएंगी ही। लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं, ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि मन में खराब थॉट्स आ जाते हैं और खराब फीलिंग्स आती है। इसमें हम क्या करें? तो यही चीज़ थोड़ा सा हम कहते हैं एक मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं SOS। आप नोट कर सकते हैं SOS मेथड। SOS माना स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर, SOS। जब भी हम देखते हैं कि हम ऐसा फील कर रहे हैं जिसमें हम अनकंफर्टेबल हमें लग रहा है, अनकंफर्टेबल फीलिंग है, सिंपली अनकंफर्टेबल। गुस्सा है, गुस्सा किसी को कंफर्टेबल लगता है? तो अगर अनकंफर्टेबल है तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। सो स्टॉप, ऑब्जर्व। नेगेटिव फीलिंग आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो तुरंत ये बात समझ लीजिए कि जो बाहर की सिचुएशन है या दूसरे लोगों का बिहेवियर है उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती कंप्लीटली, लेकिन मैं अपने अंदर जो थॉट क्रिएट कर रही हूँ उसके प्रति, उसको ज़रूर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, उसको मैं स्टीयर कर सकती हूँ। आप एक नाव चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, आप देखते हैं सामने कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो आपका काम क्या होता है? एक बार ब्रेक लगाइए, स्लो डाउन कीजिए। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके सामने वो ऑब्स्टिकल आ रहा है कुछ, तो आप स्टीयर करके साइड से निकल जाइए। या आप दोष देते रहेंगे कि मैं क्या करूं, मैं तो गाड़ी सीधी चला रही थी, ये बीच में क्यों आ गया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो ब्लेम करके तो कोई फायदा नहीं होगा। और वो जो बीच में आया उसको आप हटाने, ट्री आ गई आपके रास्ते के बीच में, तो आप उसको हटा तो सकते नहीं है, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में, आप या तो स्टॉप कीजिए, साइड से निकल जाइए। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में जो ऐसी सिचुएशंस या ऐसे लोग आते हैं जो हमारे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर कर रहे हैं, मान लो थॉट्स तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, वो नहीं क्रिएट कर रहे, हम ही सोच रहे, गाड़ी हम ही चला रहे। लेकिन अगर उनके कारण हमें लगता है कि हमारे मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसके कारण नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो स्टॉप, ऑब्जर्व, ठीक नहीं लग रहा है। फिर उस थॉट के लिए एक ऑल्टरनेटिव थॉट मन में लाके मैं इसके बजाय और क्या सोच सकती हूँ जिससे मेरा मन
जो तकलीफ पा रहा है उससे मैं अपने आप को बचा लूं, प्रिवेंट करूं, वो तकलीफ और बढ़े, उससे अपने आप को संभाल लूं। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? हो सकता है उस समय मुझे कोई ये थॉट लाना पड़ेगा कि सामने वाले के लिए कंपैशन हो, दया की भावना ले, चलो इसको मालूम नहीं इसलिए ऐसा कर रहा है, या कोई परेशानी होगी इसलिए ऐसा बोल रहा है। बहुत बार मैं क्या करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर कोई ऐसी बात बोलता है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, अनप्लेजेंट लगती है, कोई गुस्सा कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ ऐसी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, उस समय मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा स्टॉप करती हूँ। सबसे पहले मैं ऑनेस्टली अपने आप से पूछती हूँ, ये जो कह रहा है इस सारी बात में मेरा क्या दोष है? लेट मी फाइंड आउट, मैंने क्या गलत किया है जिसको मुझे ठीक करना है, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो बहुत बार दिखता है कि हाँ मेरे अंदर, चलो वो जो बोल रहा है उतनी इंटेंसिटी में या वही बात कोई गलत नहीं होगी, परंतु कुछ और है जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी बना लूँ कि ठीक है, उसने मुझे इशारा दिया इम्प्रूव करने के लिए, कुछ अपने अंदर सुधारने के लिए। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि वो जिस तरह से बोल रहा है वो चीज़ मेरे अंदर है नहीं, वो गलती मैंने की नहीं है, कुछ मेरा कोई दोष ही नहीं है उसमें। तो उस समय फिर कुछ रिएक्ट करने के बजाय कि ऐसे क्यों कर रहा है, फिर मैं सोचती हूँ ठीक है, ये बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, मैंने तो नहीं किया गलत, तो ये अब उसकी प्रॉब्लम है। तो जब मैं देखती हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है वास्तव में, तो फिर बहुत इजी है, ठीक है, ये सामने वाले का ओपिनियन है, या वो किसी परेशानी में होगा इसलिए बोल रहा है, या उसकी ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं अपने आप को उससे लिबरेट करूँ, उससे उसका जो नेगेटिव उसके अंदर है उससे अपने आप को, उसके इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचा सकती हूँ। तो ये अपने अपने तरीके होते हैं किस तरह से हम किसी सिचुएशन को डील करें, पर मुख्य बात है कि दूसरों की नेगेटिविटी को हमारे ऊपर हावी ना होने दें, अर्थात हम रिएक्ट नहीं करें लेकिन रिस्पॉन्ड करें। रिएक्ट होता है इम्पल्सिव, बस उसने बोला इसलिए मैंने जवाब दे दिया, लेकिन रिस्पॉन्ड होता है उसने बोला, मैंने सोच समझ के जो सही करना है या बोलना है वो किया। सही करना में बहुत बार होता है चुप रहना भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है, चुप रहना ये भी एक बहुत अच्छा जवाब होता है। चुप रहना मतलब कुछ नहीं किया नहीं है, चुप रहना ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल आंसर होता है या रिप्लाई होता है। चुप रहना मना इनएक्टिव रहना नहीं, चुप रहना मना सामने वाले को सोचने का एक मौका देना, दोबारा सोचने का मौका देना, खुद को भी एक सोचने का मौका देना। क्या होता है कि जब कुछ ऐसी बात होती है जो हमें पसंद नहीं आती है, तो हमारे मन में जैसे बहुत सारे थॉट्स फ्लड अप करते हैं ना, जब नेगेटिविटी आती है तो फ्लड की तरह आती है, सुनामी की तरह आती है, तो उसको फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम जो आया जुबान पे बोल देते हैं ना, सिंपली ब्लर्ट आउट करते हैं जो आया, फिर बाद में सोचते हैं अरे ऐसा नहीं बोलते तो अच्छा होता, बाद में ना? पर बाद में तो सोच के फायदा नहीं, जो बोलना था डैमेज इज ऑलरेडी डन। तो ऐसे टाइम में अगर हम एक मिनट चुप कर जाए तो हमारे माइंड को भी वो स्पेस मिलती है जिसमें हम डिसाइड कर सके कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सही है, क्या गलत है। वो डिसर्न करने की, वो परखने की हमें शक्ति मिलती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बात हम समझ लें कि गुस्सा करना, रिएक्ट करना या तेज आवाज में बोलना, खराब खराब बातें बोलना, ये स्ट्रेंथ नहीं है।
कई लोग सोचते हैं मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूं, मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं कमज़ोर हूं क्या, मुझे जवाब देना आता है। पर बाद में बहुत डैमेज होता है, बाद में उसके बहुत खराब भी नतीजे निकलते हैं कई बार। तो इसीलिए पेशेंस रखना, शांति रखना, ठंडा रखना, अपने आप को स्टेबल रखना, ये माइंड को क्लियर रखता है और बहुत सारे आगे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज खोलता है। तो ये जो मेंटल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने माइंड को स्टेबल और पीसफुल रखना। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी काम करती है। स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है कि हम अपने आप को जाने। हम दूसरों को देखते हैं वो ये कर रहा है, सारा टाइम हमारा ध्यान दूसरों की तरफ रहता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हम मेंटली वीक बन जाते हैं। दूसरे को देखते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब दूसरे को करेक्शन करने से या उसके बारे में सोचने से तो वो व्यक्ति चेंज होने वाला नहीं है। और ये हम जानते हैं कि किसी को आप चेंज करने की जितनी कोशिश करेंगे ना, वो रेजिस्ट करता है, चेंज नहीं होना चाहता है, रेजिस्ट करता है। और आखिर जब हमें रियलाइज होता है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उस समय तक बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, बहुत सारी एनर्जी ऑलरेडी वेस्ट हो गई है, हो चुकी है। तो उससे अच्छा है कि हम ध्यान दें अपने ऊपर, क्योंकि इस संसार में अगर कोई है जिसे आप चेंज कर सकते हैं सचमुच में, वो है सिर्फ स्वयं। हम स्वयं को ही कर सकते हैं चेंज, और दुनिया में हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर हम स्वयं को चेंज करते हैं तो हम सारी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। इतनी पावर है जो खुद को पूरा कंट्रोल करे, खुद को चेंज कर पाए, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, दूसरों के लिए राह खोल देता है। तो इसीलिए हम क्या करें, सारे दिन में हम कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें, 1 मिनट ही सही। जैसे ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक में बीच बीच में ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, तो ट्रैफिक लाइट मीन्स स्टॉप। अभी अपने आप सारी ट्रैफिक को रेगुलेट करने का टाइम है, स्टॉप करो, थोड़ा कुछ मोमेंट के लिए स्टॉप करो। इसी तरह हम दिन भर में थोड़ा सा टाइम निकालें, एक टाइम फिक्स कर लें कि इस समय मुझे अपने आप को स्टॉप करना है। कुछ सिग्नल, आजकल तो फ़ोन है, इतने सारे हम सिग्नल सेट कर सकते हैं कि उस समय मुझे बस स्टॉप करके अपने आप को देखना है और अपने मन को शांत कर लेना है, स्थिर कर लेना है। दूसरा, हमें दूसरों की ओर नहीं देखना है, वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को चेंज करने की, करेक्ट करने की जो हमारी आदत है, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान देके ठीक करना है। एक क्वेश्चन रोज अपने आप से पूछा करें, रोज, सारी दुनिया में मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? Who is the most person in my life? तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा सोचें गहराई से तो पता चलेगा कि मेरे लिए तो सारी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मैं स्वयं हूँ। हाँ, जिनको मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ, पेरेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, किसी के लिए फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट होंगे, किसी के लिए स्पाउस इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो मेरे हैं। तो मैं अगर ठीक हूँ तो उन सभी को ठीक रख सकती हूँ। इसीलिए थोड़ा सा टाइम हम निकालें जिसमें हम खुद को बड़े प्यार से पूछें, खुद को बहुत प्यार से अप्रिशिएट करें। थोड़ा क्वाइट मोमेंट निकालने की एक आदत रखें। भीतर हम थोड़ा झांकें तो हमें मालूम चलेगा कि हमारे अंदर बहुत एक बड़ा रिसोर्स है, जहाँ पे हमारे सारे प्रश्नों के जवाब हैं हमारे अंदर। पर थोड़ा शांत होकर क्वाइटली उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। जैसे आज हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी बात जाननी होती है,
तो लोग क्या करते हैं, सब बहुत इजीली है, गूगल करो, गूगल से सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन गूगल से भी अच्छे आंसर्स, फायदा देने वाले आंसर्स अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो अपने भीतर झांककर थोड़ा सा अपने क्वाइट सेल्फ को, अपने इनर बीइंग को पूछिए, सॉल्यूशंस मिलेंगे, रियल गुड आंसर्स मिलेंगे। सो अगर हम फाइनली अपने आप को देखें तो स्वयं को देखना, स्वयं को जानना, तो उसी से हमारे अंदर सेल्फ एप्रिसिएशन आएगा, सेल्फ लव आएगा। क्योंकि जब हम अपने रियल सेल्फ को जान जाते हैं, तो रियल सेल्फ माना ये जो सिर्फ बाहर से दिखता है वो नहीं है। बाहर से जो लोग हमें देखते हैं वो तो एक बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ है जो लोग देखते हैं और हमें कितना जानते हैं, बहुत कम। हम भी अगर अपने आप को बाहर से ही देखें तो हमने क्या अपने आप को पूरी तरह से जाना? तो हम देखते हैं कि हमारा जो रियल सेल्फ है वो सारा का सारा तो बाहर प्रकट ही नहीं होता है। अगर हम याद करें हम बचपन में क्या थे, कितने इजी नेचर था हमारा, कितना लाइट नेचर था, कितनी छोटी छोटी बातों को, हर चीज़ को एंजॉय किया करते। लेकिन आज हम वैसे नहीं, आज हम चेंज हो गए, बड़े हो गए ना, तो हम सोचते मतलब वो जो अच्छाई थी वो तो अभी भी हमारे अंदर कहीं है ना, खत्म तो नहीं हुई है, वो अंदर दब गई है थोड़ी सी। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हम अपने ओरिजिनल सेल्फ को जानें। और ओरिजिनल सेल्फ जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ये बॉडी तो है हमारा एक फिजिकल कॉस्ट्यूम है, पर जो एनर्जी है ना, जहाँ जो सोच रही है सब कुछ, जो मेंटल हेल्थ या इमोशंस जो कहते हैं, जो क्रिएट करने वाली एनर्जी है, वो कॉन्शियस एनर्जी, वो मैं हूँ। और मेरा ओरिजिनल नेचर है बहुत पॉजिटिव है। हर इंसान का जो ओरिजिनल नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर हम सीख लेते हैं नेगेटिविटी, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना हम बाहरी बातों से, पर ओरिजिनली हम बहुत पॉजिटिव है। कौन है जिसको शांति अच्छी नहीं लगती है? कौन है जिसको खुश रहना अच्छा नहीं लगता हो, कंफर्टेबल नहीं फील होता हो? द वेरी फैक्ट कि हम इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं कि जब हम शांत होते हैं या कॉन्फिडेंट होते हैं तो कंफर्टेबल फील करते हैं, इसका मतलब ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है कि ध्यान अपने भीतर की ओर ले जाए और विजुलाइज करें हमारे अंदर जैसे कि एक डायमंड है, वेरी वैल्यूएबल, वेरी पीसफुल। वो मैं हूँ जो बहुत शांत हूँ। तो एक और टिप है जो हम यूज़ कर सकते हैं, एवरी मॉर्निंग स्पेशली उठ के कुछ मिनट हम शांत बैठे और अपने आप को रिमाइंडर्स दें, जिसको हम एफर्मेशंस कहते हैं। सुबह दें या दिन में कितनी बार भी आप अपने आप को ये रिमाइंडर्स दे सकते हैं, पॉज करके, थोड़ा सा स्टॉप करके, कि मैं पीसफुल हूँ, आई एम पीसफुल, रिमाइंडर है। मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मेरा सबके लिए अच्छी भावनाएं, गुड विशेस हैं। बहुत ही पावरफुल हम कहेंगे ये एक तरीका है अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने का। सबके लिए मेरी गुड विशेस है, सबके लिए मुझे गुड फीलिंग्स है। अगर कोई परेशान कर रहा है तो बेचारा प्रॉब्लम में है, बट आई हैव गुड विशेस कि उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अपने आप उसका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सबके लिए गुड विशेस मन में लाएं, क्रिएट करें। तो ये रिमाइंडर्स अपने आप को देनी है। आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्टेबल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई हैव गुड विशेस फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। सब सुखी रहें, सभी को मन में शांति मिले, सबका अच्छा हो, सबका भला हो। तो ये जो थॉट्स हैं
ये बहुत हील करती हैं, अंदर में हमें बहुत एनर्जी देती हैं और हमारे ब्रेन को, हमारे बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो कोई भी प्रकार की बदले की भावना, रिजेंटमेंट कहो या गुस्सा या किसी के लिए दोषारोपण, ये सब बातों को एक साइड करके सबके लिए अच्छा सोचना, खुद के लिए भी अच्छा सोचना, खुद के लिए ये अच्छे अच्छे रिमाइंडर्स जरूर सुबह थोड़ा टाइम निकाल के देना। और हो सके तो मेडिटेशन का कोई ना कोई तरीका सीख लीजिए जिससे माइंडफुल हम बने, अपने आप को शांत करने, अपने इनर जो हमारी जो गाड़ी है ना, मन की गाड़ी, उसको स्टेबल होके ड्राइव करना, कंट्रोल्ड ड्राइविंग अपने मन की सीख लें। तो यही आज के दिन का स्पेशल मैसेज है। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी, स्टेबल, पीसफुल लाइफ। और ऐसे शक्तिशाली शांत मन के आधार से आपको सदा सफलता मिलती रहे, खुशी मिलती रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।